Hi everyone, good afternoon. Welcome to this session with LearnFatafat. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस which is your term 2 chapter for CBSE 10th students. ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है and in this chapter today we will study the formula to find the sum of the first n term, the sum of n terms. Okay, so let's get started. So आज का टॉपिक है फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. इसको s भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट एज sn ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट. तो इसको फाइंड करेंगे कैसे? I mean obviously related to arithmetic progressions है. तो if you are given any AP, तो उस AP में sum of first n terms, how do we find out? Let's see the important formulas here. And after seeing the formulas, then we will solve some examples to understand it better. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट सी. So this is the formula. S is equals to n by 2 2a plus n minus 1d. And अब तक आपको पता ही है, हमने arithmetic progressions के सेशन ऑलरेडी किए हैं. So you know what is small n, small a. Okay, so S is used here for the sum of the terms. N क्या है इसमें? N is the number of terms. N upon 2. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में है 2a, twice of a. A क्या था हमारे AP में? A is the first term and n minus 1. N हो गया and d, small d, we know small d क्या होता है? Common difference. कॉमन और कॉमन ज्यादा ऊपर नीचे हो गया. 1 minute. हाँ, so d is the common difference between the terms. चलो, I'm not writing common, so you know already what is a, what is d and what is n. ठीक है, तो हमें अगर sum of first n terms find करने हैं, for example you know the standard form of any AP, a plus d, a plus 2d and so on. This is the standard form of an AP. तो अगर मेरे पास कोई भी AP है like sorry 5, 7, 9 and so on. तो अगर मुझे फाइंड करने हैं, if I want to find the sum of first two terms, then तो it's very easy. I can write 12. sum of first three terms में फाइंड कर लूंगी. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसका find the sum of 50 terms, huh? How will you find sum of 50 terms in any AP? So in this AP या any AP for example, ऐसे हम 50 terms लिख के फिर उन सबको individually add ऐसे करेंगे separately, तो ये तो बहुत ही time consuming और tedious process है. That's not required at all. ठीक है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ही सिंप्लीफाई करने के लिए और थोड़े से टाइम में करने के लिए देयर आर फॉर्मूलाज गिवन, फॉर्मूलाज व्हिच हैव बीन डिराइव्ड व्हिच आर यूजफुल फॉर अस टू सेव आवर टाइम व्हेन वी डू द कैलकुलेशंस. ओके, तो s of 50 अगर मुझे ढूंढना है 50 टर्म्स का सम कितना होगा, ये प्लस प्लस सब, तो आई विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड इस AP में मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है a की वैल्यू, d की वैल्यू, we already know how to find for an AP, and n की वैल्यू. if in my example I ask you sum of 50 terms, तो n का वैल्यू कितना होगा? It will be 50, isn't it? Mr. Prince, hello, good afternoon. How are you doing? So like this s of 50 मैं ढूंढ लूंगी. ठीक है, इसको s लिख लो या sn लिख लो, it's one and the same. So this is what the formula is used for. ठीक है, this is clear. Now see, यहीं पे अगर मैं एक मॉडिफिकेशन कर दूं इस फॉर्मूला में, कौन सी मॉडिफिकेशन? एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मैं एक और सेकेंड फॉर्मूला लाने वाली हूँ. एक्चुअली ये फर्स्ट फॉर्मूला है, बीच में एक सेकेंड फॉर्मूला भी आएगा और उसके बाद ये थर्ड फॉर्मूला देखेंगे. ठीक है, so what will I write in my second formula? Let me show you. So instead of
Same formula. Okay, s is equal to n upon 2 as it is, लिख लो. Then open the square bracket. 2a instead of 2a if I write a plus a, 2a का मतलब a plus a ही होता है, isn't it? And then again other terms I will keep the same, no change in them. ठीक है, तो n plus क्या, n minus 1d. ओके, तो ये लिख के क्या फायदा हुआ, तो ये लिख के ये हुआ कि अब मुझे एक और फॉर्मूला मिलने वाला है. सी इफ यू नोटिस दिस पार्ट, just look at this part which I'm showing in blue. So do you recollect anything? Does this formula look जाना पहचाना सा दिख रहा है कि नहीं? ये जो ब्लू पार्ट में मैंने बताया है किसका फॉर्मूला है? कैन यू रिमेम्बर, कैन यू रिकलेक्ट? ये a प्लस n minus 1d. तो दिस वॉज अ फॉर्मूला विच वी लर्न लास्ट सेशन में. an का फॉर्मूला है ये nth टर्म का, right? So now instead of this formula I am going to write an. उससे मुझे मिल जाएगा मेरा सेकेंड फॉर्मूला. So I will get n by 2 a plus a n means my nth term. See actually what I have done is मैंने फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो है छोटा भी कर दिया है. See, isn't it? I have reduced it. So now you may say कि अभी ये इतना छोटा फॉर्मूला है तो ये बड़ा फॉर्मूला क्यों याद करना है और क्यों लिखना? ठीक है, that's okay in one way, you can do that also, but इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझो. ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें इससे रिलेटेड ये जो टर्म्स हैं ये पता हो, यानी कि n की वैल्यू, एक फर्स्ट टर्म की वैल्यू, एंड अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता लेकिन आपको nth टर्म पता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो. अगर आपको ऐसा AP पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो. ठीक है, नाउ दिस थर्ड फॉर्मूला, व्हाट इज दिस? सी यू कैन सी ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, देयर इज नो मच डिफरेंस इन दिस. द ओनली थिंग इज अगर AP जो होता है इसमें टोटल n टर्म्स ही हो. ओके, इफ an AP हैज टोटल ऑफ n टर्म्स और लेट्स कंसिडर m टर्म्स, देन उसका जो लास्ट टर्म होता है ना उसको हम L डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो इफ आई टेक द लास्ट टर्म एज L तो माय फॉर्मूला बिकम्स दिस, दैट्स इट. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे AP में है टोटल 100 टर्म्स, ये टोटल की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, टोटल 100 टर्म्स है अगर, तो इसमें जो A 100 होगा दैट आई कैन राइट एज L. दैट्स द ओनली थिंग, नथिंग very different. Okay, so basically अगर आपने सिर्फ ये भी by heart कर लिया then also it's okay, or even if you just by heart this one then also it's fine, क्योंकि ये कर लिया तो इससे ये फर्स्ट फॉर्मूला भी आराम से मिल जाएगा जब आप an को सब्स्टिट्यूट कर दोगे विद इट्स फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर? So these formulas, in these formulas, do you have any doubt? Let me know in these three formulas. चलो ये clear है. Now we will start solving the example. Solve examples solve करेंगे आज, so that we understand the application of these formulas. So let's see this question here. Question says, find the sum of the first 22 terms of the AP 8, 3, minus 2 and so on. So what is given and what is not given and what we have to find. Sum of first 22 terms ढूंढना है means I have to find S22 is how much. ठीक है. Secondly, AP is given as 8, 3, minus 2 and so on. So from this AP, I will know that the first term is how much? 8. Common difference is how much? 3 minus 8 कर लो या minus 3 minus 2 कर लो. ठीक है, you will get the same answer.
Okay, got it. So you're going to solve it with me and tell me what is the answer. What answer will you get for this? Directly formula लगा देते हैं. Formula क्या था? S of n, Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 d. Right? This was the formula. Just put the substitutions now. n की वैल्यू कहाँ है इसमें? n की वैल्यू देखो, ये दोनों टर्म्स को आप कंपेयर करोगे ना तो n की वैल्यू दिख जाएगी आपको. ये s और s है, ये 22 की जगह पे n लिखा है, मतलब n की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 22 ही लेंगे ना. सो 22 by 2, 2a, तो 2 into a की वैल्यू है 8 प्लस n minus 1, n was how much? 22. ठीक है, I'll just write here so you don't get confused. n की वैल्यू है 22 and d is we have found out minus 5. Okay, सारे वैल्यूज डाल दिए. Now just do the simple calculation and tell me के आंसर क्या मिल रहा है. 22 upon 2 11 तो हो गया. 2 8 16 plus 22 minus 1, 21 into minus 5. So this gives 16 minus, plus and minus हो गया minus 5 1s are 5, 5 2s is 10. Okay, so 16 minus 105 obviously negative होगा आंसर, और 105 में से 16 निकालना है तो 5 निकाल दिया तो 100 में से और 11 निकाल दो 90, 89, राइट. ठीक है, correct. Let me know if there's any error in the calculation. Okay, and now simple multiplication. 11 का टेबल तो बहुत इजी है. 11 9s 99, 11 8s 88 और ये 9 कैरी ओवर था तो 88 प्लस 9 88 98 97. So this is the answer. The sum of, हाँ n नहीं लिखती हूँ अभी, मैं लिखूंगी 22 because I have found के first 22 terms का जो sum होगा that will be minus 979. Okay, yes, everyone got this answer, I hope. चलो फिर एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. Okay, examples. You have written the number. ये NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल्स ही है. How many terms of the AP? यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि हमें क्या फाइंड करना है. That's important. That's the part where the students get confused. ठीक है, फॉर्मूला लिखना फिर उसमें कैलकुलेशन में इसमें ये सारी चीजें इसमें इजी हैं AP में, इस चैप्टर में. ओनली कंफ्यूजन मेनली स्टूडेंट्स को हो जाती है N और AN में या SN में. ठीक है, सो जस्ट SN में तो इतनी नहीं होती क्योंकि वो तो सम लिखा होता है उसमें. AN and N में कंफ्यूजन हो जाती है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. हाउ मेनी टर्म्स? हियर वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स. मीन्स मुझे ढूंढना है N कितना है. AP दिया है, AP में से मैं लिखूंगी फर्स्ट टर्म इज हाउ मच 24 एंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 21 minus 24 minus 3. Okay, must be taken. How many terms must be taken so that their sum is 78? See here what is given is sum is given. Sum of those n terms is given as 78. तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें. The unknown is n. Okay, only unknown will vary. Sometimes unknown will be Sn, sometimes unknown might be N or might be A or D, anything, or even maybe AN, यानी n term भी ढूंढना पड़ेगा. भी देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करने ही वाले हैं, so you will get an idea how to do, what to do, when to do. Okay, ये हमारी मेन चीज है, ये लिख ली एक बार. इसके बाद तो it's very easy. So let me write the formula.
and then we do the substitutions. Sn इसमें given है 78, तो 78 is equal to n is unknown, n को n ही रखना होगा हमें, and now 2a is 12, n is unknown and common difference है -3. Okay, got this equation? अब इसको सॉल्व कर लो. पहले मैं ये 2 को LHS में ले जाती हूँ, 78 into 2 लिख देती हूँ, and then 12 2s are 24, and ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, -3n आएगा +3. ठीक है. Now 78 2s are कर लो, 2 8s are 16, 2 7s are 14 plus 1 15, है ना? Right? So I will get 156 is equal to n. This becomes 24, 25, 26, 27. 27 minus 3n. Okay, so 156 is equal to, तो यहाँ पे मुझे अब ब्रैकेट ओपन करना होगा, 27n minus 3n स्क्वायर आ गया. तो ये मुझे एक्चुअली क्या मिलने वाली है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है. ये लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी हमें. सो सारे टर्म्स को रीअरेंज कर दो, लेफ्ट में ले जाएंगे सबको, तो हमें मिल जाएगा ऐसा. करेक्ट? Sorry, so this is a quadratic equation, but we can simplify it further. यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो what will I be left with? जितनी सिंपल हो सके, जितनी छोटी हो सके कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस, we have to try that, isn't it? That's the beauty of doing maths. When you're doing it with practice, so you know how to make your sums, your calculations and your working easier, and do it in less time, and also without errors. That's the most important thing. So if you take 3 common here, तो मुझे क्या मिलेगा? n square minus 3 9s are 27 and plus 3 5s are 15 and 3 2s are 6. ठीक है? Is this the correct quadratic equation? Are you getting this? $48. Okay. नहीं, ये सही नहीं है. 1 minute. See, there is an error which I have made here. ये a को 12 कैसे ले लिया मैंने? a तो 24 है. First term is 24. Wait, let me rectify this. Not like this, okay? Actually, मैं यहाँ से इरेज करती हूँ इसको. थोड़ा सा रीडू करना होगा. चलो, no problem. So this is not 12, 2 into a ना, तो a की वैल्यू एक्चुअली 24 है. ठीक है. तो this becomes 2 into 24 यानी कि 48. So yes, 156 चाहिए. 2 is a 16, 2 is a 14, 15, right? So this becomes 44, 9, 50, 51. Okay, this is a bigger number. Okay, 156 is 51n minus 3n square, and now 3n square minus 51n plus 156. Okay, ये है quadratic equation. ठीक है. a का वैल्यू 12 डाल दिया था एक्चुअली मैंने. एक्चुअली इज नॉट 12. ठीक है. नाउ लेट्स टेक 3 कॉमन हियर. इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 3n square, तो n 3 1s are 3, 4 5, 3 7s are 21. Okay, and 3 5s are 15, 3 2s are 6. Yes, n square minus 17n plus 52. Yes, this looks right now. ये है actual quadratic equation which you'll be getting. ठीक है. अब
you know how to solve a quadratic equation. You can use any method. quadratic equations का चैप्टर इनफैक्ट इसके पहले ही हमने पूरा किया है, तो अगर फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली तो फैक्टराइज कर लेंगे. So 52 के factors 13 fours are, yes, so we can use those. 13 fours are 52 use कर लेंगे by splitting the middle term method. You want, you can use formula method also, that will also give you the same answer, but this is easier इसमें क्योंकि factors आसानी से मिल गए हमें. So what will be the value of n? Because ये quadratic equation आ गई तो n के हो जाएंगे इसमें दो values, right? So n will be either 4 or n will be 13. तो number of terms in this AP, see यहाँ पे 24, 21, 18 and so on. इस AP में you can see decreasing order में है ये AP. तो क्या इसमें दो वैल्यू हो सकते हैं क्या n के पहला वैल्यू अगर n is 4 तो what will it mean कि sum of the first 4 terms is 78, and if I will say n is 13 तो ये तो sum of first 13 terms हो जाएगा 78. दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं क्या? कैन वी कंसिडर बोथ ऑफ देम एज द सॉल्यूशंस? व्हाट डू यू थिंक? सी फर्स्ट 4 टर्म्स का 78 तो हो ही सकता है, 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस नेक्स्ट जो भी होगा. तो अगर 4 का ही 78 हो गया तो 13 टर्म्स अगर हम लेंगे तो शुड इट बी मच मोर देन 78. सो यू नो नेक्स्ट टर्म इसमें क्या होगा, 3 कम हो रहे हैं ना, 15 देन 12 एंड सो ऑन, राइट? तो देखो बाय लॉजिक तो वो नहीं हो सकता 13 टर्म्स, लेकिन एक्चुअली इन दिस एपी क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो एट सम स्टेज ये छोटे छोटे होके जीरो भी आने वाला है ना, और नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें. दैट्स व्हाई 13 टर्म्स का सम भी 78 हो सकता है. आर यू गेटिंग इट? दैट्स व्हाई आई विल से कि मेरे पास है n की दो वैल्यूज, दो आंसर है n के लिए. Either the value of n, number of terms can be 4, or the number of terms must be 13. ठीक है, 13 टर्म्स लेंगे या फिर 4 टर्म लेंगे तो इसका सम आ जाएगा 78 as asked in the question. ठीक है, ओके नेक्स्ट करेंगे अभी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ अब आया. सो सी हियर, ओके दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इसमें फाइंड द सम ऑफ दो सब क्वेश्चंस हैं. तो फाइंड द सम, पहला क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इवन मोर कि हमें फॉर्मूला की जरूरत क्यों होती है, isn't it? So first 1000 positive integers का sum कितना होगा, means actually what do we want in this question? Positive integers means obviously 1 2 3 ये सब. तो मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे मैं करते जाऊं क्या कौन से नंबर तक, 1000, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम. चलो इन सबको भी बैठ के ऐड तो नहीं करेंगे ना, हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम ये वर्किंग जल्दी कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली माय एपी विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड इसमें ये याद रखो कि वी नो व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी. ओके, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो दिस एपी विल बी स्टार्टिंग विद 1 देन 2 देन 3 एंड इसका एंड हो जाएगा 1000 पे. आर यू गेटिंग दिस? So whenever you can get the last term ना of the AP तो उसको जरूर लिखो और यूज करो, क्योंकि फिर हमारा जो छोटू वाला फॉर्मूला है ना वो यूज करके हमको आंसर भी आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द AP. तो नाउ फ्रॉम हियर यू नो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड यू नो द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म को L लिख लेते हैं ना. ठीक है,
L लिख लेते हैं लास्ट टर्म को। अभी हम छोटा वाला फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला जो मैंने दिखाया था आपको स्लाइड में, वो वाला यूज कर लेते हैं ना. Why to use the bigger formula? Because we know the last term here. So I will write this one. That's it. इसमें अब अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो s of 1000 हो जाएगा. n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑब्वियसली 1000 and first term is 1 and last term is 1000. See, so in this shorter way you can do this sum. हाँ, पहला वाला फॉर्मूला लगा के भी आंसर पक्का जाएगा, वो 2a plus n minus 1d वाला भी, लेकिन जरूरत नहीं है ना, why to waste time. So this will become 500 into 1000 plus 1 is what? 1001. And now we'll do this multiplication and that will give me the final answer. ये कितनी इजी, देखो ये दो जीरो जो 5 के साथ हैं, जस्ट कॉपी देम एज इट इज. आफ्टर दैट 5 का टेबल यूज करो. So 5 ones are 5, then these two zeros and then 5 ones are 5. So this is my formula, not formula, this is my answer. आंसर इसमें बहुत ही जल्दी आ गया. ये आंसर है फॉर द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 1000 positive integers. So do you realize how useful learning these formulas is? देखो, अगर आपको ये अगर बिना फॉर्मूला में करने बोलूंगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते रहो बैठ के, 1000 तक ऐड करते रहो, इतनी जल्दी आएगा क्या आंसर? नहीं, नॉट एट ऑल. कितनी भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट क्यों ना हो, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा आंसर. सो दिस इज द क्विकेस्ट वे टू फाइंड द आंसर. ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स. ओके, चलो अब इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का. लेट्स डू दैट. सो सेकेंड पार्ट इज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n positive integers. So here they have asked us about first n. अभी कितने पता नहीं, n positive integers, लेकिन at least we know कि positive integers start कहाँ से होते हैं, वो तो fixed है ना, that will be from 1 only. Only वो end कहाँ पे होगा वो हमको पता नहीं, वो n पे end होगा ऐसे बोला है. So my AP will look something like this now. 1, 2, 3 and so on till n. वो कुछ भी हो n का वैल्यू. क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, ये हो गया एपी. चलो इसको भी हम क्यों ना इसी छोटे से फॉर्मूला से कर ले. इज इट पॉसिबल और नो? टेल मी. पॉसिबल है, क्यों नहीं. फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आएगा इस आंसर में, बिकॉज इसका n इज n ओनली, वी डोंट नो द वैल्यू. दैट्स ओके. I know the first term and I know my an नहीं, मैं n लिख देती हूँ. Last term is n only. ठीक है. So let me write formula. Formula हो गया same. ये वाला यूज कर लो, छोटू वाला. n/2. n is unknown. n को हम यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे कुछ नहीं. n is n only. First term. Wait, I'll write the formula, then I will substitute. First term is 1 and last term है n. अब क्या करेंगे इसके आगे? n n n, सब जगह n ही है. n को हमको n ही रखना है because n का value is not given in the question itself. So this is my final answer. Write it like this or like this. Anyhow you can write it. ओके, डन हो गया. इसका आंसर मिल चुका है. नथिंग मोर टू बी डन. ठीक है, गॉट इट. ओके, सो दीज वर एक्चुअली वेरी वेरी छोटू से सम्स जल्दी हो गए. 1000 देख के वैसे लगेगा कि शायद टाइम लगने वाला है, लेकिन लगा नहीं. Isn't it? Okay, see this one more example. And here what we have to find.
Here we have to find the sum. Obviously sum ही find करना है किसका? Find the sum of first 24 terms. So what do we write for 24? What is equal to 24? N. 24 terms बोला है ना. Find the sum of the first 24 terms. यानी कि मुझे फाइंड करना है S of 24. S24. अभी टेक्सो में हमें ना एक्चुअली सम के लिए आपको सिर्फ S भी लिखा है, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू यूज दिस S और SN. यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, बट अगर हम SN यूज करेंगे ना तो यू विल ऑलवेज गेट एन आइडिया कि आपको N की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है. सो बेटर यूज दिस फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू मी. बाकी इट्स योर डिसीजन. यू कैन यूज S ऑल्सो. सो व्हेन आई रेड S24 ना मुझे डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है कि N की वैल्यू है 24. ओके, ऑन द लिस्ट ऑफ नंबर्स. अब यहाँ पे अगर एक डिफरेंट चीज क्या है, सम में AP तो है ही नहीं कहीं दिया हुआ. AP नहीं दिया है, but something else is given. No, let's use that. Nth term is given by. Nth term is given here A of N. AN is equal to 3 plus 2N. ये है इसका nth term का वैल्यू. That's it. कोई AP नहीं दिया है इसमें, so you don't know what is the first term, you don't know what is the last term. As it is, you don't know means you can find it, but इस AN के फॉर्मूला से ही फाइंड कर लेंगे. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको. AN फॉर्मूला इज गिवन एंड मुझे ये फाइंड करना है क्या. आई डोंट नीड टू फाइंड द फुल AP हियर, isn't it? देखो अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे ना इंटरनेट पे, ऑब्वियसली आप देखते ही होंगे सॉल्यूशंस, और different types of solutions, some different methods used. All may be correct also, okay, but some have some errors also. Sometimes I myself have seen. So never blindly trust or copy any solution. ठीक है, always work it out on your own, and if you get it then only use it. तो similarly let me tell you इसका भी some some places it may be given that you have to find the whole AP and then A मिल जाएगा, D मिल जाएगा, उसके बाद आप वो अपना फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने देखा था n/2 2a plus n minus 1, we use that. You can do that, but you don't need to do that. That will take more time. I am going to teach you to what learn फटाफट. फटाफट हमको जो भी कर सकेंगे जल्दी से जो हो जाए, कैलकुलेशंस भी, अंडरस्टैंडिंग भी, that we will do. तो फटाफट देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें मालूम होगा तो हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और S24 फाइंड कर लेंगे. दैट्स इट. ठीक है, अंडरस्टूड. फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे अब? वेरी सिंपल. N की जगह पे डाल दो 1, हो गया, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा. N की जगह पे डाल दो 1, सो आई विल गेट 2 1s are 2, 3 plus 2 5. ये हो गया, फर्स्ट टर्म मिल गया. अब और क्या चाहिए मुझे? अब सेकंड टर्म थर्ड टर्म नहीं चाहिए मुझे बाबा, मुझे AP नहीं फाइंड करना है. आई जस्ट वांट माय लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मतलब कौन सा? हियर हैव टू फाइंड S24 ना. फर्स्ट 24 टर्म्स का पूछा ही है, तो इट्स ओके इफ आई जस्ट फाइंड A24. मैं वो ही फाइंड कर लूंगी. तो व्हाट विल आई गेट? 3 plus twice of 24, that will be 3 plus 24 का 2 होता है 48, with to the 4, 48, 49, 50, 51. ठीक है, 24th term will be 51. correct, clear. Now let's write our छोटा फॉर्मूला, लास्ट थर्ड वाला फॉर्मूला जो पढ़ा था, and then I will put the values. Second formula, to be more precise here, this is the second formula. If you remember, A plus AN लिखा था मैंने जिसमें, क्योंकि actually this is not the last term because यहाँ पे AP में total 24 terms ही है, ऐसे नहीं दिया है. Sorry. So S24 is equal to N की वैल्यू हो गई 24. A is I got 5 and nth term 24th term I got as 51. That's it. 2 12s are 24. 5 plus 51, 56.
अब 12 के टेबल से 12 6 जा 72 7 12 5 60 67. So this is my answer. S24, sum of the first 24 terms will be 672. Yes, you can also क्रॉस चेक भी कर लो. आप एक काम करना, एपी भी फाइंड कर लेना. ठीक है, A1 A2 A3 ऐसे करके एपी फाइंड कर लो, ए और डी कर लो, उसके बाद फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लो. इफ यू वांट टू बी श्योर कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है तो आप वैसे भी करके देख लो. कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर विल बी 672 ओनली. ओके, सो yes, I think this is the last question for today. हाँ, so let me thank you for watching this session, and after watching this session, finding the sum of n terms Sn, ये आपको अच्छे से आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर. और इसकी और भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. दैट इज वेडनेसडे, सेम टाइम 3 p.m. So I'll see you then, and take very good care of yourself.